رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیوں، میں آپ کا بھائی محمد طاہر رضا قادری آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی آڈیو کے ساتھ۔ یہ جو شخص ہے جس سے میری گفتگو ہو رہی ہے، اسے آپ سنیں سماعت فرمائیں کہ یہ لیپ ٹاپ کے چکر میں پڑھ کر اپنا کیسا ایمان و عقیدہ برباد کر رہا ہے۔ کم علمی کی بنیاد پر اپنے عقیدے کو اس نے برباد کر لیا اور یہ گمراہی کی طرف جانے والا ہے، جا رہا ہے۔ فاروق خان رضوی کے چکر میں کہ وہ لیپ ٹاپ لے کے جاتے ہیں، ان کے چکر میں یہ بھی لیپ ٹاپ لے کے اپنا لیپ ٹاپ سے اپنے مسئلے اخذ کر رہا ہے۔ یعنی ہم کسی مسئلے کو جاننے کے لیے ہمیں عالم کی بارگاہ میں جانا بہت ضروری ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لیے، لیکن یہ لیپ ٹاپ سے اپنا مسئلہ حل کرتا ہے۔ دیکھیے کیسا اپنا ایمان اور عقیدہ برباد کر رہا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ ریکارڈنگ پہنچانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اب سے 1400 برس پہلے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 دوزخی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، تو اس جنتی فرقے سے جو ایک فرقہ چلا تھا حضور کے زمانے میں، جو صحابہ کرام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اسی فرقے سے یہ 72 اور نکلنے ہیں دوزخی۔ تو کیسے نکلیں گے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ اس طریقے سے لوگ اپنے ایمان و عقیدے کو برباد کریں گے اور اسی طریقے سے وہ 72 فرقے پورے ہونے ہیں اور یہ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اس ریکارڈنگ کو پورا سنیں اور میرے چینل جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، تاکہ ان دیوبندی وہابیوں اور فرقہ باطلہ کے گندے عقائد اور گندے ان کی عبارتیں آپ لوگوں کی خدمت میں ہم پیش کر سکیں، تاکہ آپ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما سکیں۔ اسے کتنے دن ہوئے ہیں ابھی اس کو اس بارے میں نالج نہیں، وہ بھی ہو آپ کو گئے نالج نہیں ہے کسی بارے میں؟ آپ بہکے کب سے ہو یہ بتاؤ پہلے، آپ کب سے بہکے ہو؟ جی آپ کو بہکے وہ کتنا ٹائم ہوا؟ یہ جو آپ اس میں لیپ ٹاپ میں پڑھ کے اور جو بہکے ہو کتنے دن ہو گئے آپ کو؟ آپ کے وہ جو ہیں ایک مولانا فاروق رضوی صاحب، جی جانتے ہیں؟ رضوی نہیں، رضوی۔ ہاں وہ بھی ہے رضوی نہ رضوی اور رضوی میں فرق ہے نا، رضوی تو خبیث ہوتے ہیں، ہم رضوی ہیں۔ رضوی ہوں ہاں وہ بھی ہوں، ہاں بتائیں۔ وہ بھی لے کے چلتے تو ہم نے سوچا وہ لیپ ٹاپ لے کے چلتے ہیں، لیکن لیپ ٹاپ سے وہ آپ کے عالموں کی وہ دکھاتے ہیں، وہ حدیث نہیں سناتے ہیں لیپ ٹاپ سے۔ لیپ ٹاپ سے حدیث نہیں سناتے، حدیث ان کے پاس الگ کتاب ہوتی ہے، کتاب سے حدیث پڑھتے ہیں وہ، اس میں تو تمہارے کلپ دکھاتے ہیں تمہارے عالموں کو کیا کیا عقیدے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ یہ تمہارے توصیف الرحمان ہیں، تمہارے وہ ہیں جلال الدین قاسمی ہیں، تمہارے ذاکر نائک ہیں۔ اس وقت نہیں آ رہی ان کی کوئی تقریب ہوتی؟ رمضان میں تو ہر ایک آدمی چپ ہے اس وقت، رمضان میں تو روزے رکھے آدمی نہیں، رمضان سے پہلے بھی نہیں آ رہی نا؟ نہیں بہت آ رہی تھی، رمضان سے پہلے تو تھی، میں نے بھی خود سنی ہے۔ ہم نے تو بھی نہیں سنی ابھی دو چار ارے اس کے شعبان کے مہینے میں جو وہ دستار بندی چلی نا، اس وقت تو بہت تکلیف آ رہی تھی۔ تو آپ مطلب انہیں دیکھ کے بہکے ہیں؟ ہم نے ان کو جو ہے یہ بتایا تھا کہ جو ہے وہ ہم سے بتانے لگے کہ جو ہے اس کے بارے میں جو ابھی صبح بھائی جان نے جو فون کیا تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، تو انہوں نے جو ہے کیا تو ہم نے ان کے واٹس ایپ پہ ڈالا تھا، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہی ڈالا تھا نا جو مفسرین ٹھیک ائمہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نکاح بھی قول نہیں نا کہ جو ہے زبان سے نیت کریں، نکاح بھی زبان سے نیت نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا بھی قول نہیں کہ زبان سے نیت، منع ان کا بھی ہے دل کا ارادہ۔ منع کیا ہے؟ ارے یہ تو ہر ایک آدمی جانتا کہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے کر لینا ہی بہتر ہے۔ یہ کسی نے منع کیا کہ زبان سے نہ کیجیے؟ آپ یہ بتائیں مجھے، آپ مجھے یہ بتائیں احمد انصاری صاحب، آپ نے منع تو بہت چیزوں سے نہیں کیا گیا ہے، تو وہ کیا کرنا صحیح ہے؟ پھر نہیں وہ کرنا صحیح ہے؟ کون سا؟ جیسے بتائیں، مثال پیش کرو۔ نہیں بہت چیزوں سے منع نہیں تو کیا گیا، مثال پیش کرو نا، کس چیز سے میں نے منع نہیں کیا، میں اس کا جواب دوں گا آپ کو، بتاؤ۔ ارے کوئی ایک بات پیش تو کرو کہ کوئی چیز کو منع نہیں کیا گیا ہے۔ جی حرام کھا کے جو ہے جو بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، ہاں تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ مطلب بینک میں پیسے رکھ کے کیا مطلب؟ حرام کیا کھا رہے ہیں اس میں؟ یہ سود سے انوالو ہے نا۔ ہاں ہاں
तो यहाँ पैसा रखना जायज है कि नहीं? जो उसका मतलब फायदा मिलता है भाई जो पैसा डालते हैं उसमें कुछ तो सूद बढ़ता होगा, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें वो वहाँ पैसा जो है रखना जायज है। तुम्हारे आलिम हराम कहते हैं उसे? और क्या कौन से आलिम कह रहे हैं तुम्हारे हराम? भाई, वो जो पैसा बढ़ता है वो तो गलत है ही। है वो जो पैसा बढ़ रहा है वो ऐसा है? गलत है ही। तुम पढ़े वो कितने हो? कुछ भी नहीं। यानी कुछ भी पढ़े वो नहीं है, तो तुम इन चक्करों में मत पढ़ो, तुम अपना ईमान गंवा चुके हो। यहाँ के काफिर जो हैं ये हम पे हुकूमत कर रहे हैं, वो पैसा हमारे लिए जायज है। पाकिस्तान के अंदर जो काफिर हैं, अगर वो लोग उनसे मतलब वो फायदा लेते हैं नहीं, तो उनके लिए जायज नहीं है वो। नहीं, असल बात अब ऐसा है कि मसाला आप जानते नहीं हो अभी। यहाँ के काफिर जो हैं ये हरबी काफिर हैं। इनका जो है हमें जो मिल रहा है उसे हम सूद नहीं समझेंगे, उसे हम फायदा समझेंगे अपने पैसे का, क्योंकि हमारे पैसे को बरत रही है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है नहीं। अच्छा, वो काफिर है। आपका क्या कहना है, सुनिए जैसे ये जो सुनिए बैंक में सुनिए पैसा रखना, हाँ हाँ वो ये बताऊँ जो मैं। बैंक में पैसा बना रखना, ये कैसा कोई भी आपकी नजर आलिम में क्या है? कोई भी आलिम मना नहीं कर सकता इसे, मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको। यहाँ के जो काफिर हैं, ये जो मतलब हम पैसा रखते हैं, ये गवर्नमेंट जो है, ये बैंक इस गवर्नमेंट की है, यहाँ की काफिर गवर्नमेंट की बैंक है। तो हम इसे फायदा समझ के लेते हैं, हम इसे सूद नहीं समझते हैं। ये हमारे लिए जायज है। अब जैसे कि हम फायदा मुसलमानी, मतलब कैसे? जैसे हमने इसमें 1 लाख रुपए जमा कर दिया, जी 1 महीने में हमें उसमें 2,000 रुपए मिलता है, जिसे आप सूद बता जी रहे हैं, समझे नहीं? जी जी तो हमारे लिए जी। सूद नहीं है, वो क्योंकि क्यों सोच रही हैं? सुनो मैं बताऊं आपको, भी तो समझाऊं मैं। हाँ ये हाँ, जो है, बता दिए। ये जो हुकूमत है यहाँ काफिर हुकूमत है। यहाँ जो बैंक है वो काफिरों की है, समझे ना? जी तो अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हुकूमत जो है मुसलमानों की है। अगर जी। वहाँ जो काफिर हैं उन काफिरों से ऐसा फायदा लेकर वो खाते हैं, तो उनके लिए जायज नहीं है वो, क्योंकि वो काफिर जिम्मी है। और ये काफिर जो है ये हरबी है। अभी आपको इतना मालूमात नहीं है, इतना लंबा कहाँ पढ़ रहे हो, अभी तो आप यहीं उलझे रहो, यहीं से नहीं, नहीं हम तो निकलोगे अभी यही तो। समझते हैं भाई, अगर हमने किसी को 1,000 रुपए दिए, उसने अगर 1,100 रुपए हमको दिए तो वो सूद है। ये वो एक किसे सौ दिया आपने बताइए? किसी को भी दिया, काफिर हो इसमें या गैर मुस्लिम हो ना या ना ना, मुस्लिम इसमें हो, इसमें देखो, ये तो तुम्हारे अंदर मतलब ये तो खामी है तुम्हारे अंदर। अभी तुम इस बात को नहीं जो जानते, भी अगर तुमने किसी नहीं नहीं, मुसलमान को दिया। जो भी पैसा बढ़ती मिल रहा है, अरे सुन तो लो जरा। बिना मेहनत का जो भी पैसा बढ़ती मिल रहा है वो जो है ना सूद ना में ना ना, जाएगा। हर तरह का सूद नहीं किया जाएगा, जैसे नहीं, यहाँ। आप जैसे आप हमको बता रहे हैं ना, तो आप भी थोड़ा जो है मतलब इस पे अरे वो बता गौर तो रहा हूँ, आप करिए। सुन तो लो। आप इधर आप सुन तो रहे नहीं मेरी बात को। अगर हाँ, आप सुन किसी तो रहे मुसलमान को दोगे और उससे बढ़ती हैं। लोगे, तो वो आपके लिए सूद हो जाएगा, क्योंकि वो मुसलमान है, जी जी समझे नहीं? और यहाँ तक है मसला, तो अगर आप किसी काफिर को दे रहे हैं नहीं, और उस जी। काफिर से पहले ही तय कर रहे हैं कि देख 1,000 दे रही हूँ मैं तुझे, और तू मुझे कब वापस लौटागा, कितने दिनों में वापस लौटाऊंगा, कि मैं तुझसे 1,200 लूंगा, उससे खुलासा पहले कर लेना, तो वो तुम्हारे लिए जायज हो जाएगा, वो आराम नहीं है। अच्छा। हाँ वो भी हाँ, सूद तो नहीं उसमें हमने एक आला हजरत का फतवा पढ़ा था, उसमें ये लिखा था है। हाँ, कि अगर जो है क्या बोलते हैं, सूद की जो है पैसे से अगर हम मस्जिद या मदरसा या कुछ भी तामीर करते हैं तो वो जायज है, मगर वो हमने पैसे नहीं देना, हमको सामान लेना वहाँ से। हमने कुछ पढ़ा था इसमें क्या मतलब? किताब से, तो हाँ, न तो यही जो सूद नहीं बता दिया रहे होगा सूद उन्होंने, का उसमें पैसा। सूद नहीं होगा लिखा हुआ, वो आपने गलत पढ़ा है। सूद का पैसा नहीं होगा वो। पूरी बात पढ़ो आप, मुझे बताओ हवाला तो नहीं कौन सी किताब पढ़ा का था है? भाई, वो नहीं तो नहीं, कह रहे ऐसे थे भाई, बहुत सी ऐसे चीजें लिख के ऐसे आला हवाई फान हजरत ने नहीं बहुत सी चलेगा। चीजें। आप मतलब एक बात बताओ, तुम ये हम आपको दिखाएंगे तो हम तुम इस लाइन मानेंगे पर नहीं, आए आप कब से हो, हमसे ये उल्टा बताओ। इस मानेंगे लाइन पे नहीं। कब से आए हाँ, हो? हम लाइन पे नहीं है भाई। आप नहीं, किसको मानते हैं, किन इमाम को मानते हैं? इमाम आजम अबू हनीफा तो हम रहमतुल्लाह भी तो ताला। मानते हैं। कहाँ मानते हो तुम? अगर इमाम आजम अबू हनीफा को मानते तो इब्न तैमिया की तारीफ क्यों करते? तो इमाम अबू हनीफा जो है रहमतुल्लाह ने यही कभी नहीं कहा कि जवान से नहीं करो, है या उन्होंने कभी नहीं कहा कि सूद जो है खाना जायज है। इन्होंने नहीं कहा ये सूद कब हो गया? इमाम अबू तुम कौन? जो इतने बड़े आलिम अल्लामा बन रहे हो कि तुम्हारे कहने से सूद हो गया, जब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मसला ऐसे है, तो तुम उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तुम अपनी जबान से रटे आ रहे हो सूद हो गया, अच्छा, सूद वो होगा जो मुसलमान को दोगे तुम। यहाँ किसी जो गैर मुस्लिम हुकूमत को है हम, ये सुनो हमारे तो भाई। हमारे ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं ये काफिर हैं, और काफिर भी हरबी हैं। ये हम पे हुकूमत कर रहे हैं, इनका पैसा हमारे लिए, वो हम जो इन्हें पैसा बरतवा रहे हैं अपना, जो इनसे हम अच्छा, फायदा इनका ले रहे हैं, वो पैसा फायदा खाना समझेंगे जायज मुझसे। है। हाँ जायज है वो, उसे हम फायदा समझेंगे, उसे सूद नहीं समझेंगे। अच्छा, हमने किसी जो है किसी को 1,100 रुपये 1,000 रुपया दिया, मैंने किसी गैर मुस्लिम को, हाँ 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 और उससे हमने कहा कि हम वापसी 1,200 रुपये लेंगे। हाँ, पहले तय कर लिया नहीं? ठीक है, हाँ पहले तय कर लिया तो वो उससे। सूद होगा कि नहीं नहीं होगा नहीं, फिर? ये ब्याह हो गई आपकी, आपने उससे खुलासा कर लिया। पहले आपने किसी को कहा कि 1 कुंतल गेहूं दूंगा मैं तुझे, किसी काफिर को, जी और मैं तुझसे वापसी में लूंगा 1 कुंतल 10 किलो, इतने दिनों में अगर तू मुझे देगा, तो वो ब्याह कर लिया आपने, खुलासा हो गया, उसमें खुलासा करके दे रहे हो आप उसे, वो सूद नहीं होगा, जी। वो सूद नहीं होगा। ये अभी तुम नहीं पढ़े ये लिखे तो हो नहीं, लैपटॉप लेके बैठ जाते हो, तुम मालूम तो है नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा। वैसी हर बात का हिसाब आप खुद ही लगा रहे हो। किसी आलिम की बारगाह में जाओ अपने, क्यों
کیوں اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہو؟ اپنے ایمان کو ایسی بھائی ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. جو ہے کوئی بھی کسی سے اگر آپ پیسہ بڑھا کے لیتے بنا محنت کا وہ سود ہوگا ہے. اگر بنا بڑھا کے کسی سے بھی پیسہ لیتے ہو، ہم نے آپ کو 2000 دیا، آپ سے 2500 روپے لے لیا، وہ سود ہو جائے گا. میں مسلمان ہوں نا تو مجھ سے سود ہو جائے گا آپ کے لیے. اچھا غیر مسلم سے جائز ہو جائے گا؟ ہاں ہاں غیر مسلم سے جائز ہے. میں جیسے بتا رہا ہوں یہاں کی جو اگر حکومت، میں ابھی یہ کاروبار کھول لوں کہ جو ہے غیر مسلم کو دوں گا 2000 لوں گا، یہ تو کاروبار بنا لیا پھر آپ نے. اس میں نیت ہوتی ہے، نیت. ارے آپ بینک میں پیسہ جمع کر رہے ہو تو کس لیے کر رہے ہو؟ حفاظت کے لیے نا، کہ ہماری پیسے کی حفاظت ہوگی، ہے نہیں؟ تو ہم کو الٹے پیسے دینا چاہیے نا، جو ہمارے پیسوں کی حفاظت کر ہم کو ارے لینا جہالت پن کیوں برت رہے ہو؟ وہ 1 لاکھ روپے تمہارے برت بھی تو رہے ہیں. اگر وہ تمہیں اس کو فائدہ دے رہے ہیں تو تمہارے لیے جائز ہے. وہ تم کہاں بھاگو گے بتاؤ؟ پہلے تم اسی پہ آؤ نا. یہ جو تم بدعت لیے پھر رہے ہو کہ صاحب بدعت کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہیں، اسی پہ آؤ پہلے. تم مجھے تو بتاؤ، یہ جو مسجد بنا رہے ہو تم، وہ یہ جو مائک میں اذان پڑھ رہے ہو، اور یہ مسجدوں میں سردی کے موسم میں گرم قالینیں بچتی ہیں اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈی بچتی ہیں، یہ دکھائیے ذرا مجھے قرآن سے حدیث سے ہے. جی یہ دکھاؤ ذرا مجھے قرآن میں حدیث. ہیلو، ہاں سن رہے ہیں. آپ بتاؤ، یہ دکھاؤ ذرا قرآن میں حدیث میں دکھائیے ذرا کہاں لکھا ہوا ہے. اچھا بہت چیزیں نہیں لکھی ہوئی تو کیا ہے جو آج کل جو ہے تو اس کا مطلب کیا نیت کو لے کے بیٹھو گے تم کے سامنے؟ یہ اردو میں کرے گا اگر یہ لکھی ہوئی نہیں تو اسی لے کے بیٹھو گے تم؟ مطلب اپنی بات کا کسی کا جواب نہیں دو گے؟ ایسا ہے تم دماغ خراب کرنے کے لیے فون کرتے لوگوں کو. ہاں تم مطلب کسی کی بات نہیں تو مانتے ہو، اپنا ایمان برباد کر رہے ہو. کتنے دنوں سے ہو تم اس میں، اس لائن میں؟ اس سے پہلے کیا تھے بتا تو رہے ہیں بھائی. اس سے پہلے کیا تھے؟ اس سے پہلے تھا بریلوی. بریلوی کتنے دن ہوگا یہ بنے ہوئے؟ سناٹن تھا. ہاں کتنے دن ہو گئے؟ کتنے دن ہو گئے بنے ہوئے؟ ابھی کتنے دن ہو گئے؟ کتنے دن ہوئے بتاؤ؟ وہی 1 سال قریب. 1 سال قریب. والدین ہیں تمہارے؟ جی والدین ہیں ختم ہو گئے؟ جی ہیں والدین ہیں. تو اب تم بریلوی کو کیا مانتے ہو؟ بریلیوں کو ہم صحیح مانتے ہیں، غلط کیوں مانتے ہیں بھائی؟ کیا مانتے ہو؟ ہم تو یہی مانتے ہیں بھائی، جو اچھے کام کرتے وہ اچھا کام کرتے. مسلمان مانتے ہو نا؟ جی مسلمان مانتے ہو؟ او بھائی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے ہوں تو مسلمان ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے کیا؟ جی ہے جی. شیعہ بھی مسلمان ہوتا؟ وہ بھی تو آخری نبی کو مانتے ہیں. شیعہ مسلمان مانتے ہیں آپ شیعہ کو؟ وہ عقائد کے طور پہ الگ ہے نا. نہیں تو آپ مسلمان مانتے ہیں انہیں؟ نہیں عقائد کے طور پہ الگ ہے. میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے آپ مجھے. تو آپ نے کہا نا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، شیعہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اسے مسلمان مانتے ہیں شیعہ کو آپ؟ وہ فرقوں میں آتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی 72 فرقے وہ فرقوں میں آتے ہیں. ارے آپ نے ابھی یہ کہا نا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان، تو شیعہ بھی کلمہ پڑھتا ہے اسے مسلمان مانتے ہیں آپ؟ قادیانی بھی کلمہ پڑھتا ہے اسے مسلمان مانتے ہیں؟ وہ مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اچھا بتاؤ فرقوں والے جنت مسلمان ہو نہیں؟ اب یہ تم اپنے منہ پہ خود تھپڑ مارو، اپنے منہ خود کہو. ابھی آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی ہوگا. تو یہ شیعہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، قادیانی بھی کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں مسلمان مانتے ہیں؟ جی مسلمان مانتے ہیں؟ بتا تو دیا آپ کو، وہ فرقہ ہے نا 72 فرقوں میں فرقہ. ارے ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کلمہ پڑھتے ہیں، تو 72 فرقے تو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے. وہ جو 72 دوست ہوں گے وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے؟ تو وہ بھی ہوں گے. تو وہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں. تو کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا نہیں ہوں گے؟ نا جو مطلب دوزخ میں جانے والا مسلمان ہوگا. دوزخ کس کے لیے بنی ہے؟ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوگا؟ جو خراب کام کرے گا وہ نہیں ہوگا. نہ ہمیشہ جو دوزخ میں جائے گا وہ مسلمان کے لیے نہیں ہے. مسلمان اگر جائے گا تھوڑی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے تو آن کے لیے بس اپنی گناہوں کی سزا بھگتے گا اور دوزخ سے نکال دیا جائے گا اسے. ہمیشہ کے لیے جو اس میں دوزخ میں جائے گا وہ 72 جو ہوں گے وہ ہمیشہ جائیں گے. نہیں اصل بات جو مشرک ہے جو منافق ہے وہ ہمیشہ کے لیے. وہ 72 بھی تو کافی ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جہالت پر دکھا رہے ہو احمد انصاری صاحب. آپ بات کو سمجھتے تو ہو نہیں. آپ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ گئے ہو، کیوں گمراہ ہو رہے ہو؟ کہ اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہو. ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان سے فرما دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، فرمایا نہیں؟ ایک جنتی ہوگا 72 دوستی ہوں گے. تو دوزخ میں کون جائے گا یہ بتائیے آپ مجھے. تو آپ سے ہم یہ سوال کریں کون سا جنتی ہوگا؟ جنتی تو تمہیں پتہ نہیں کون سا جنتی ہوگا. جنتی وہ ہوگا جو کو نہیں پتا بھائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا. جی تو وہی تو ہم لوگ کر رہے ہیں. تو آپ کہاں کر رہے ہو تم؟ بولو.
भाई वही तो कर रहे हैं ना सर, नबी ने जबान से नियत की ना साहबा ने नियत की, तभी तो वही तो बता रहे चल हैं। ठीक है, वो कर रहे हो तो फिर मस्जिद में तोड़ो ही अपने, तुम्हारी मस्जिदें जो क्यों बना रहे हो? ये कच्ची मस्जिदें थी ना, नबी ने बनाई ना साहबा ने बनाई। तुम्हारे जैसे आदमी अगर सामने हो गए ना तो बंद करेगा ना कमरे पर, सांटे का पैना पकड़ जाएगा तुम पे। मर्दूद हो तुम, अच्छे खासे ईमान को अपने खराब कर रहे हो, अच्छे खासे रास्ते से और रास्ते भटक रहे हो तुम। उस आयत कुरान की उस आयत के मिज़दाक हो रहे हो जो कुरान में फैसला अल्लाह ताला ने कर दिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उलाइकल लदीना इश्तरबुद दलालता बिल हुदा, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी। गुमराही खरीद हाँ, ली। हिदायत को छोड़ कौन कर से लोग गुमराही ने खरीदा। खरीद ली? तुम लोग हो तुम। और पहले ही आगे नहीं कहा कि तुम बुकुमिन को हम लायर जऊन, क्या वो तो अंधे तुम ही हो, तुम ही हो वो। अरे तुम ही हो, जब जहालतमंद दिखा रहे हो तुम एक बात को पकड़ के बैठ जाते हो, साहब वो नहीं करा हमने, जो वो नहीं कर रहे हम, जो नबी ने नहीं किया। तो ये मस्जिद कहाँ बनाई नबी ने? वो क्यों कर रहे हैं आप जो? तुम क्यों कर रहे हो फिर? ये मस्जिद क्यों बना रहे हो? क्यों माइक में से आगे क्यों बढ़ रहे हो? अरे सहाबा तुम से आगे तुम क्यों पढ़ बढ़ रहे हो? ये नबी से आ गया, ये मस्जिदों में अजान जो पढ़ रहे हो माइकों में क्यों पढ़ रहे हो? हम लोग नहीं पढ़ते तो कहाँ में पढ़ते हो तुम? ऐसे पढ़ते है ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ते झूठ बोल रहे हो। खीरी लखीमपुर मैंने देखा नहीं है, कौन सी जगह रहते हो तुम खीरी लखीमपुर? आप ही के बरेलवी के जमात के लोग अजान कहते हैं। हम तो पढ़ते हैं, हमारे लिए जायज है। हम तो इस बात को मानती नहीं कि जो नबी ने काम ना किया है, साहबा से साबित ना हो तो वो मतलब बिदअत हो जाए। हम लोग वो सुनिए हमारी हम नहीं बात मानते इस बात को। आज ही आज मकान कैसा है तुम्हारा? मकान कैसा है बताइए? पक्का पक्का। पंखे उनके लग रहे हैं जी। नबी ने कहाँ लगाया? कौन से साहबी ने लगाए पंखे? और कौन से साहबी ने पक्के मकान बनाए? ऐसे क्यों रह रहे हो उसमें? इसमें आग लगाओ, जंगल में जाओ, कच्चे मकानों में रहो जाके। आप बड़े आए मतलब नबी के और साहबा के रास्ते में चलने वाले। अब आपको कह रहे हैं हम नबी के, अब आप खुद भी दोजख में जाओगे ना, अपने माँ बापू को दोजख में लेके जाओगे, समझे ना? जन्नत का रास्ता छोड़ के और ये दोजख का रास्ता अख्तियार कर रहे हो तुम, सबको लेके जाओ दोजख में। अगर जन्नत के रास्ते पे होते तो कभी जो ये नहीं कहते क्या जो सहाबा ने किया नहीं। अरे तो मरदूद कहा, तुम क्यों कर रहे हो ये? अरे तुम क्यों कर रहे हो ये? क्यों नमाज पढ़ने जा रहे हो उसमें? पक्की मस्जिद में नमाज कहाँ पढ़ते हो? कहाँ नमाज पढ़ते हो? चलो अजान नहीं पढ़ ले तुम माइक में। मस्जिद पक्की है कच्ची है? पक्की है ना, तो क्यों पढ़ते हो उसमें नमाज? जो बनी का है कि यहीं पे क्यों बनाई है? जब साहबा ने किसी नबी ने बनाई थी ये पक्की? ये साहबा ने बनाई? क्यों बनाई तुमने जब नबी की? उस दौर में उस दौर में क्या था? अरे तो मरदूद जो काम मतलब नबी से साहबा से साबित नहीं है, तू अभी तो कहता है मतलब। एक जवाब। अरे मेरी बात सुन, ये अहमद अंसारी मेरी बात सुनिए। अभी आप ये कह रहे हो कि जो नबी से साबित नहीं है और जो साहबा से साबित नहीं है वो हम काम नहीं करते, तो ये मस्जिद साहबा से नबी से साबित कहाँ है? जब ये साबित नहीं थी तो आपने क्यों बनाई? बताने तो जा रहे, आप सुनते कहाँ? बताओ। ये जो है, ये जो काबा जो बना था, तामीर किया गया था, ये किस चीज से किया गया था? आप बताओ, मुझे तो मालूम नहीं है किससे किया गया था। हाँ, पत्थरों से। पत्थरों से किया गया था कि भाई अंसारी साहब काट क्यों रहे हैं फोन? भाई यार चेक करिए जाके ना, जब आपको मिले ना तब हम देंगे आपको। मतलब मिली नहीं अभी आपको? आपको जरूरत है ना। ना तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम जैसे मुनाफिक मरदूद जो नबी पे झूठ बांध रहे हो कि नबी ने फरमाया कि मेरा नाम आया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना। तुम्हें शर्म नहीं आ रही, गैरत नहीं आ रही? तुमने झूठ बांधा बेवजह। क्या पढ़ना चाहिए? तुम हदीस पेश करो पहले मुझे, कौन सी हदीस है वो? हदीस पढ़ के सुनाओ। अल्लाह के बंदे ये बता दे तू। अरे आपने ये कहा ना कि सरकार की हदीस है ये, वो मुझे हदीस पढ़ के सुनाओ बस, मैं भी अमल करूंगा उस हदीस पे फिर, कि सरकार ने ये फरमाया कि मेरा नाम आया तो ये जरूर पढ़ना। वैसे तुम कहते हो कि हम जो नबी ने और साहबा ने नहीं किया वो काम नहीं करते हम, सब बिदत। इसे छोड़ो, हम तो कोई भी पढ़ लेंगे, हमारे लिए हर नया काम बिदत नहीं है ना, तुम्हारे लिए बिदत है ना। तुम पक्के बिदती मुशरिक खुद हो ना अपने फतवों से। तुम मुझे हदीस पढ़ के सुनाओ। तुम लोग ना आला हजरत को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कह देते हैं ना। अरे तू, मेरा मौजू ये नहीं है, इस पे मौजू पे अगर बात करनी तो अलग हो है मौजू। मुझे तुम हदीस पेश करो, इधर भागने की कोशिश मत करो, राय फरार इख्तियार मत करो। तुम अपने फतवों से खुद बिदती हो रहे हो, खुद मुशरिक हो रहे हो। तुम ये कहते हो कि दीन में हर नया काम बिदत है, जब हर नया काम बिदत है तो ये मस्जिदें पक्की बना रहे हो तुम, और माइकों में अजान पढ़ रहे हो, और इसमें टाइल्स पत्थर लगा रहे हो, ये भी बिदत है। ये नबी के जमाने में नहीं थी ना कि साहबी ने बनाई। ये कहाँ से साबित है? तुमने कहा काबा बनाया इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबा बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया। तुम्हें कहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में कि पक्की मस्जिदें 3-3 मंजिल 2-2 मंजिल मस्जिदें बनाओ, और फिर उस पर तुमने झूठ बांधा। मैंने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप पढ़ते हो नबी का नाम आता है, ये कहाँ कौन सी हदीस है? तो आपने कहा कि मेरे पास हदीस है, ये हदीस में लिखा हुआ कि सरकार ने फरमाया है कि मेरा नाम आया तो मुझ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। यानी ताला भी तुमने हटा दिया कि हम ताला नहीं पढ़ते हैं, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। तो वो मुझे दिखाओ कौन सी हदीस है, पढ़ो। अगर नहीं दिखाए तुमने तो तुम पक्के मरदूद, पक्के शैतान और पक्के बिदती हो, पक्के मुशरिक। ना पढ़ के सुनाओ हदीस, पढ़ो। हेलो
हेलो, अबे बिदतियों, शैतानों, मर्दूदों, कब तक तुम आवाम को धोखा दोगे? ऐसे लोगों को धोखा दे रहे हो। मर्दूदों, तुम्हें गैरत नहीं आती? तुम्हें मरना नहीं है, कब्र में नहीं जाना? ये झूठ बोलते हो, बेवजह झूठ बांधते हो, नबी पे झूठ बांध रहे हो कि नबी की हदीस है कि मेरा नाम आए तो मुझ पर ये पढ़ना। कौन से साहबी ने पढ़ा ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? भाई ये क्या है, दरूद है क्या है? दरूद मुझे है इसका जरूरत नहीं, तुम्हारे जैसे मर्दूदों के नहीं, ये अल्फाज सही हैं। तुम मर्दूदों पक्के शैतान हो, शैतान के चेले हो तुम झूठ बोलते हो और आवाम को गुमराह करते हो, और फिर अपने आप को कहते हो कि हम पहले बरेलवी थे। पहले बरेलवी थे, ये बरेलवी थे तुम, पहले बरेलवी। तो बरेलवियों को तुम्हारे देवबंदी जो है मुशरिक माने हैं, तुम क्या मानना हो बरेलवियों को? हम लोग बरेली हो गए हैं? हम की मानेंगे, हम कौन है फैसला? तुम्हारे अकाबिर जिन्हें तुम अकाबिर मानना है, वो तो अकाबिर तुम्हारे मुशरिक कह रहे हैं हमें। कौन सा अकाबिर भाई? तुम्हारी ये असल थानवी है या तुम्हारे आज के ये अकाबिर उठ रहे हैं नए नए, ये जितने मुल्ले उठ रहे हैं सब मुशरिक कह रहे हैं, ये मुशरिक कह रहे हैं सब। ये तुम्हारे देवबंदी जितने भी उठ रहे हैं नए नए मुल्ले, तुम क्या कहते हो बरेलवी? किसको कह रहे हैं? अच्छा, जो हमें मुशरिक कह रही है उस पर तुम्हारा क्या फतवा बताओ, उसे क्या कहते हो तुम? भाई देख, एक बात, तू गलत करेगा, जैसे तू गलत होगा, मैं गलत करेंगे, मैं गलत हूँ, ये अल्लाह के वहाँ पर ना। अंसारी साहब, बात लहजा मत बिगाड़ो, अपना लहजा तमीज के साथ में बात करो ना। मुझे मालूम है कि फिर मैं उस तरफ ही आ जाऊंगा जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। तुम मुझे ये बात बताओ, हजरत ने जो सिखाया तुम, जो हमें ना, हम हजरत ने कुछ ना सिखाया, हम हजरत ने सिखाया कि किसी से बात करनी हो सलीके से करो। हम ये नहीं सिखाया जैसे बदतमीजी तुमने शुरू कर दी है। अबे तब तुमने शुरू कर दिया, मैं तुम्हें हरामी साबित कर दूंगा अभी। ये बताओ कि जो हमें मुशरिक कहता है उसके लिए तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है? तुम क्या समझते हो उसे? तुम तो बरेली वालों कह रहे हो मुसलमान समझते हैं हम, मुशरिक हैं तो आपको लगता होगा नहीं। तो जो हमें मुशरिक कह रहा है उसे क्या समझते हो आप? वो कौन है तुम्हारी नजर में? आप सुनो तो, मैं तुम्हें हरामी साबित कर दूंगा अभी कि तुम हरामी हो पक्के, तुम अपने बाप की औलाद ही नहीं हो। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया है कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसकी असल में खता है, और जो नबी के गुस्ताखों का दिफा करे उसकी भी असल में खता है। तुम्हें मैं अभी हरामी साबित कर दूंगा, ए अंसारी, अभी हरामी साबित कर दूंगा, अभी हरामी। मरदूद, शैतान और बिदती मुशरिक तो मैंने साबित कर दिया। आगे की निस्बत नहीं मिल रही, पक्के मरदूद, शैतान, बिदती तो तुम साबित हो गए अपने फतवे से। दीजिए मेरा भी, और तुम्हारा ठिकाना जो है जहन्नम बन गया, जहन्नम में जाओगे अब तुम, समझे ना? हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोल तो रहे हैं, आप भी बोलो ना। ना मैं क्या बोलूं, बस हो गया काम तुम्हारा। तुम झूठे कज़्ज़ाबों के लिए बस यही काफी है। तुमने झूठ बांधा ना नबी पे उस दिन के, नबी ने की हदीस है, ये हदीस तुम पढ़ नहीं रहे। अब तुमसे क्या बात करूं मैं? तुम दिमाग खाली करने के लिए आते हो बेवजह, आता ना जाता चुनाव निशान छाता है तुम्हारा। वैसे ही तुम्हारे पास है तो कुछ नहीं, बस लैपटॉप लेके बैठ गए। लैपटॉप उनकी फारूक खान रजवी की होड़ कर रहे हो तुम, उनके पास इल्म है नहीं इल्म दिया तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें तो ये पता नहीं होगा कि गुस्ल में क्या फर्ज है, क्या सुन्नत है, क्या वाजिब है। अभी पूछने लगूं तभी तुम्हारा पजामा गीला हो जाएगा। नहीं चली तो सोचा बरेलियों को, आगे से पजामा गीला हो जाएगा और पीछे से पीला हो जाएगा, समझे ना? तुम बरेलियों को क्या समझते हो ये बताओ? तुम्हारे आज के जो मुल्ले हैं वो मुशरिक कहते हैं बरेलियों को, तुम क्या कहते हो? हम कुछ भी नहीं कहते। क्या मुसलमान मानते हो? अल्लाह ने कहा जो फिरके बनाता है उससे तुम्हारा कोई लेना देना। तो तुम क्यों बने फिरके? फिर तुम कह रहे हो ना पहले मैं बरेलवी था, फिरका तुम खुद बना रहे हो। तुमने अलग क्यों निकले फिरके से? तुम जहन्नुमी हो गए पक्के। अरे अपने फतवे से जहन्नुमी हो गए। अंसारी अभी कह रहे हो कि अल्लाह कह रहा है कि फिर क्यों बना रहे हो? तो फिरका तो तुमने बरेलवी से पहले बनाता है, तुमने पहले बरेलवी से अभी इकरार किया नहीं कि मैं पहले बरेलवी था। अब तुम फिरके में क्यों गए नए में? क्यों गए? उलाइकल लज़ीना इश्तरबु ज़लालत बिल हुदा, तुमने हिदायत को छोड़ के गुमराही खरीद ली। जहन्नुमी पक्के शैतान मरदूद तुम बन गए। हजरत ने खरीद लिया, तुम शैतान मरदूद बन गए। नहीं मतलब पहले कुछ थे, यानी हिदायत वाले रास्ते को छोड़ के गुमराही वाले रास्ते पर चले गए, अब शैतान बन गए। शैतान नहीं, शैतान के साथ में जहन्नम में जाओगे। शैतान का चोला पकड़ के और जाना उसके साथ में जहन्नम में। एक चीज बताएं, कुछ मत बताओ, शैतान मरदूद तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जवाब बता दिया तुमने कुछ।